Hey guys, hi, this is Abhishek, Master Teacher of Physics Vedantu. कैसी चली और बच्चों जिंदगी? What's up people? कैसे हो? जल्दी से बाहर आए बोलो यार, चैट में देख रहा हूँ यार सबको यहाँ पे। आ गए बोलो जल्दी से। हो गया बढ़िया एकदम। हाय अभिषेक जी नमस्ते, संस्कार जी नमस्ते, हनी जी नमस्ते। हाय अभिनंदन पूजा जी बहुत दिनों में कैसे हो? दिवाली कैसे की सबकी सबकी बढ़िया है एकदम। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि भाई आफ्टर दिवाली वी आर कमिंग विद सच एन इंपॉर्टेंट सेशन फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू गाइस and with a very important personality of Vedantu. We are going to come back very soon right now here. Okay, hi Abhishek ji namaste, Shauri ji namaste, कैसे हो आप? यार पहले एक बात बताओ in one single word how was your Diwali? जल्दी से एक बार एक word बताओ जल्दी से. How was your Diwali in one single word? जल्दी से. Why Menti cancelled sir? Because of this session beta. Because of this session it got cancelled. Understood? We'll be doing that very soon. Don't worry. ठीक है? OP क्या? एकदम OP. Thank you so much. Not nice, right? Bestest it was. Okay. मिसयूज अच्छा मिस्ड मी अच्छा ग्रेट एंजॉयिंग अच्छा मजेदार था सर बहुत बढ़िया मेरा कैसा गया मेरा भी बहुत अच्छा गया यू नो लाइटेड नॉट मच ऑफ बॉम्ब्स एंड ऑल नॉर्मल छोटे जो ज्यादा पोल्यूशन नहीं करते उनका इस्तेमाल किया एनवायरमेंट के बारे में सबसे जरूरी होता है जगह से एकदम बड़े से एंजॉयड वंडरफुल फैबुलस ठीक है तो एक काम करो सबसे पहले अभी काम आपका आज का ये है कि आप जाओ अपने दोस्तों को बुलाओ क्योंकि ये सेशन हो रही है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये शायद बहुत बच्चों का मतलब जिंदगी थोड़ा बदल सकता है maybe your path might change today, so it's really important that you guys are here. On that particular note, people, let me tell you the importance of this session. But once again, as I said, it can change your path, and to change your path today, we have a very special guest on Vedantu Mandaran channel. I think after a long time away from YouTube, the person is coming back on YouTube for an amazing session, and that is known as Vikas Agrawal sir. अभी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं. Vikas sir has taught 4,000 mentored and taught 4,000 plus JEE aspirants out there, and he's currently handling the toppers division when it comes down to JEE and that entire category. And you know the JEE results this time already 1,500 plus selections. That is even more crazy. And to tell about that entire thing and also about this important announcement today, let's welcome Vikas sir with the huge applause, people. आगे हमारे विकास सर आपके स्क्रीन के ऊपर Hi students, how are you all doing? कैसे हो जल्दी बताओ yes 1500 plus yes I hope he is one of the teachers behind that yes sir please go ahead. Hi students, so I hope you all had a fabulous Diwali. So very happy Diwali from my side also to you and your family. And as sir said, I am here to talk about something very important, something which is which can be transforming your life, especially for students who are living in remote part of India and who are not getting access to quality education. So उनके लिए तो ये session बहुत ही important है. We'll get to know about that in a short while. We'll begin with that. Absolutely. So we'll start with the first question कि भाई आज का मुद्दा है क्या और I can already see someone writing down कि सर I have already registered IOQJS के लिए already कर दिया है ना तो एक बार आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि क्या है आज का तो let's go forward for the why do we need to go forward for IOQJS examination in a second. Shall we? Ready एकदम चलो. Sure. So sir, मैं सबसे पहले बताता हूँ कि IOQJS ये है क्या चीज ठीक है तो some of the students are saying that they have already registered so that is very good very aware students. Now for those of you who are not so aware let me tell you this thing like this JS stands for Junior Science. So basically ये एक एग्जाम है जो कि जिसको अगर आप क्लियर करते हो ठीक है तो फिर you will get a lot of recognition like government of India is involved in conducting this examination. And if you clear this examination, you will have a very good credential to mention in your CV. Cap you can say, based on which you can get direct admission not only to reputed Indian universities, but also international universities like MIT and Stanford. They give credit to students who have cleared this exam. And जो भी यूनिवर्सिटीज होती हैं ये मल्टीपल क्राइटेरियाज को कंसिडर करती है while offering admission to a student. One of the criteria is the performance of a student in Olympiads. So therefore if you are aspiring to study in top universities in India and abroad, then this may well be your first step towards those universities. So that's fantastic. So I would like to ask each and every one of you guys यहाँ right now अभी sound problem हो रही है सबको sound issue हो रही है रुको एक बार मैं देख लेता हूँ sound issue हो रही है just give me a second. Check. सही तो है बेशर्मो वॉइस विकास सर आप बोलिए check. बेशर्मा आवाज तो बिल्कुल बढ़िया है नहीं सही है ये ऐसे करता रहो हमेशा मेरे साथ
बट एनी हाउ बट मेरा सवाल यहाँ पे सारे बच्चों से यहाँ पे कि कितने बच्चे बाहर जाकर डिफरेंट कंट्री से पढ़ने का एस्पायर कर रहे हैं ऑलरेडी, या तो फिर हमारे ही कंट्री में ही willing to go into the prestigious universities out there. How many are willing? Give me a quick बल्ले बल्ले on the chat right now, जल्दी से बल्ले बल्ले जल्दी से. Yes, I can see a lot of me's. बढ़िया है, बढ़िया है. तो take this as the first step, and as he said, that's a feather in your cap right now automatically if in case you get into this. But of course the path is not going to be that simple, and what is that path going to be? Vikas sir will be telling that. But उससे पहले और कोई sir benefits? और कोई बेनिफिट तो हमारे पास पढ़ने का जो एक अपॉर्चुनिटी है वो तो है ही है, एंड यू विल गेट टू नो कि हम जो अभी बता रहे हैं उसमें बच्चों को कुछ अमेज़न वाउचर्स वगैरह जीतने का भी ऑप्शन मिलेगा और छोटी-मोटी प्राइस के कुछ ज्यादा ही प्राइसेस हैं डरो मत. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक दिस आल्सो बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, चांस टू रिप्रेजेंट योर ओन कंट्री. यस दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. और विकास सर अभी तक हमें मतलब ये आईके जो इंटरनेशनल पे होते हैं हमने जीता हुआ है अभी तक? हाँ बिल्कुल, हमने जीता है. 2019 जो कि लास्ट ये एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसमें इंटरनेशनल गोल्ड मेडल इंडिया के पास ही आया था. सो इंडिया ने जीता है, और उससे पहले 2014 में जीता था. सो 2014 2019 I think this is a big gap and we want to narrow it down, and hence we are coming in this direction, like we are coming with a program that can help India win more gold medals, और ज्यादा frequently हम जीत सके, उसके लिए we are coming. Fantastic. What's bigger dream than that, people? So I really hope all of you are into this session right now. Hold on for the next 10-15 minutes and you'll get to know everything about it. And trust me when I say this, at the end of the day, you're going to be leaving this session very happy. Let's go for the next session and understand कि है क्या IOQ, जिसे एक बार समझ जाते हैं विकास सर से. तो मैं ना एग्जाम के ऊपर थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ, ठीक है? तो अपन स्टार्ट करते हैं, जैसे मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? ये है अंतिम पड़ाव, लाइक फाइनल जो आपको क्लियर करना है. दिस IJSO स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड, ठीक है? तो ये जो एग्जाम है, इस एग्जाम को अलग अलग कंट्री से टीम्स आती हैं एंड दे फाइट फॉर इट, और एक कंट्री से जो टीम की स्ट्रेंथ होती है वो अराउंड 5-6 स्टूडेंट्स की होती है, ठीक है? सो इंडिया से भी जो कंटिंजेंट जाएगा उसमें अराउंड 5 to 6 स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है? सो वी आर एस्पायरिंग फॉर टू सेंड आवर स्टूडेंट्स इनटू दिस टीम. मतलब हम चाहते हैं कि हम जिन स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहे हैं वो यहाँ पे जाएं, और न सिर्फ यहाँ पे जाए बल्कि फिर यहाँ पे जाके दूसरी कंट्रीज को बीट करे और इंडिया को गोल्ड मेडल ला के लाए. सो ये अल्टीमेट एम है. सो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, ठीक है? तो ये तो है अंतिम स्टेप जहां पे हमको पहुंचना है, जो हमें अंतिम हर्डल क्लियर करना है. अब मैं स्टार्ट करता हूं स्टेप 1 से. तो यहाँ पे भी दो चीजें बताना इंपॉर्टेंट है कि कोविड सिचुएशन अराइज होने के पहले क्या होता था और कोविड सिचुएशन अराइज होने के कारण क्या मॉडिफिकेशन हो गया है. तो मैं पहले स्टार्ट करता हूं, लाइक व्हाट यूज्ड टू हैपन बिफोर द कोविड सिचुएशन अरोज, ठीक है? सो देयर यूज्ड टू बी, दिस वाज द स्टेप 1 अर्लियर, okay, and this stands for National Standard Examination of Junior Science. Okay, so इस एग्जाम को अक्रॉस इंडिया कंडक्ट कराते थे और इसमें मोर देन 50,000 स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं, और इसमें से फिर अराउंड 300 स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है. ये जो 300 स्टूडेंट्स होते हैं इसमें सारी स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन होता है, यानी कि हर स्टेट से a certain number of students are selected, और उनका जो क्यूमुलेटिव काउंट होता है वो अप्रोक्सीमेटली 300 जाता है. इससे ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि अगर किसी एक स्टेट से मान लो बच्चों ने ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर दिया तो ये लिमिट नहीं लगाते हैं कि हम वहां से इतने ही बच्चे लेंगे, नंबर बढ़ा भी देते हैं. मतलब एक सर्टेन कट ऑफ क्लियर करने पर नंबर बढ़ा देते हैं कि बच्चों ने, अगर ज्यादा बच्चों ने क्लियर कर लिया तो फिर नंबर बढ़ा देंगे. तो दिस नॉट अ फिक्स्ड नंबर, इट कैन गो अप डिपेंडिंग अपॉन कि अलग अलग स्टेट्स में से मान लो कुछ स्टेट्स ऐसी है जिनमें से बच्चे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करके ज्यादा number of students have performed well, so this number can go up also, but let's keep it at around 300. ठीक है? हाँ सर जी, माइक निकाल दे. हाँ, सामने रख देते हैं. ओके, बच्चों की इशू आ रहा है, कोई बात नहीं बच्चों, निकाल देते हैं माइक अभी. बिल्कुल सर जी, बिल्कुल. मैं पकड़ लेता हूँ माइक, if in case you face any issue. चलो, थैंक यू सो मच सर. हाँ, तो आवाज अभी ठीक है एकदम सबको? जल्दी से बोलो एक बार, पहले जल्दी से दोबारा चैट में बोलो. यस, साउंड इज क्लियर नाउ फॉर एवरीवन. जल्दी जल्दी बोलो. यस, अब आवाज आ रही है? मेरी भी आवाज आ रही है? हाँ ठीक है, अब आवाज ठीक हो गई. ओके ग्रेट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. ठीक है चलो ग्रेट. हाँ चलिए ठीक है. तो सो दिस इज स्टेप 1, एंड द स्टूडेंट्स हु क्लियर्ड दिस स्टेप दे यूज्ड टू अपीयर फॉर द सेकंड स्टेप व्हिच वाज इंडियन नेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड. ठीक है? तो ये 300 स्टूडेंट्स इसके अंदर अपीयर करते थे. ये जो एग्जाम होता था दिस वाज यूज्ड टू बी ऑब्जेक्टिव इन नेचर, लाइक इसमें एमसीक्यू आते थे, ऑप्शंस होते थे, ऑप्शंस में से सेलेक्ट करना होता था, एंड
based on that the students used to get selected. This stage was subjective in nature. मतलब इसमें बच्चे पूरा complete solution लिख के आते थे, वो पूरा complete solution check करके, and then इन 300 में से around 35 students जो हैं ये select होते हैं. ठीक है, so 300 students stage 1 approximately, number can go up also, then 35 students in stage 2. ये लोग जो select हो जाते हैं then they go for orientation cum selection camp. ये camp होता है HBCSC में, ठीक है, which is in Mumbai. So होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन, वहां पर ये कैंप लगता है, इन बच्चों को बुलाते हैं और वहां पे इन बच्चों को नई चीजें पढ़ाई जाती हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स कराए जाते हैं और उसके बेसिस पे इसमें से फिर अराउंड 5 to 6 स्टूडेंट्स यानी कि जो फाइनल कंटिंजेंट है उनको सेलेक्ट किया जाता है, उनको फिर और ट्रेन किया जाता है प्री डिपार्चर कैंप में और यहां से मतलब उनको पूरे तरह से रेडी करके फिर यहां पे भेजा जाता है इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए. सो दिस इज द एंटायर प्रोसेस दैट गोज ऑन. Right. That's fantastic. People, look at the effort it is going. Look at the effort it is going in. मतलब कितना ज़्यादा ही, मतलब आप एक एग्जाम क्लियर करोगे, फिर दूसरे में जाओगे, फिर तीसरे में जाओगे, यहाँ पे आपका ट्रेनिंग हो रहा है, फिर यहाँ पे एक सिलेक्शन प्रोसेस हो रही है, उसके बाद फिर यहाँ पे जा रही है. तो आई थिंक द एंटायर कंट्री इज लुकिंग फॉरवर्ड टू एक्चुअली एज दैट थिंग. दैट्स व्हाई सो मच ऑफ ट्रेनिंग प्रोसेस एंड एवरीथिंग. सो यहाँ से एक और जो मैसेज हम दे सकते हैं, मतलब जो थिंग टू अंडरस्टैंड कि ये इजी नहीं है, ये इजी नहीं है, ये ठीक है. पूरे इंडिया में से अगर हम इतने बच्चों को सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा ये तो केवल प्रोसेस की बात हो गई. अभी अगर मैं ये बताऊंगा कि इसमें किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कि कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, देन यू विल फर्दर रियलाइज कि दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट एग्जाम टू क्रैक, एंड हेंस द रिगरस प्रिपरेशन दैट इट नीड्स एंड द एक्सपर्टीज इट नीड्स इन टर्म्स ऑफ टीचिंग ऑल्सो एंड इन टर्म्स ऑफ कंटेंट ऑल्सो. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अभी बताया है कि प्री कोविड सिचुएशन में क्या होता था. उससे आगे जाने से पहले आई वुड लाइक टू आस्क ईच एंड एवरी वन ऑफ केस, हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी टू टेक दिस चैलेंज यार. मतलब आई एम प्रीटी श्योर दिस, इफ अ स्टूडेंट इज प्रिपेयरिंग 10th board examination, 12th board examination would not matter at that point any time. So how many of you are actually ready to take the challenge and they are not, you know, surviving right now, living right now just to write down 10th board examination or 12th board examination? मतलब यार या तो फिर ये तो फिर चलो 8th और 9th है, यू नो, एज कैटेगरी में आ जाएंगे, तो एग्जाम्स के बारे में नहीं बट चैलेंज को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं. तो आई कैन सी अ लॉट ऑफ मीस. सो पीपल, फॉर यू गाइस इज दिस, सो लेट्स टॉक अबाउट दैट. अगर आपके जैसे कोई और बच्चे हैं तो उनको इस वीडियो को जरूर शेयर करना, बताना उनको, क्योंकि बहुत बच्चों को पता भी नहीं होता है भाई कि IOQJS क्या होता है, IJSO क्या होता है और इंडिया कितना अच्छा कर रहा है इसमें ऑलरेडी, राइट. सो लेट्स, हाँ, अब पोस्ट कोविड क्या हुआ देखते हैं. यस, ये चीज मैं भी बच्चों से अपील करना चाहूंगा कि अगर तुमको अपने सर्कल में कोई भी ऐसा बच्चा पता है लाइक हु कैन रियली टेक अप दिस चैलेंज, उसको बताओ इसके बारे में. ठीक है, मतलब कि bring them to this session, let them watch this session and let them follow whatever we are telling, and you, that guy will definitely thank you for the rest of your life. So Absolutely. ठीक है, अब मैं इस पे वापस आता हूँ. So ये है प्री कोविड सिचुएशन. कोविड होने के बाद से क्या किया, बिकॉज वी डोंट वांट द स्टूडेंट्स टू गेट आउट ऑफ देयर होम टाइम एंड अगेन. तो ये दोनों स्टेजेस जो है ये क्लब कर दी गई है. मतलब अब क्या होता है, ये दोनों एग्जाम सेम डे पर होते हैं, बट उसके अलावा एवरीथिंग स्टिल रिमेन सेम. जैसे एक ही दिन बच्चा पहले क्या करेगा, लाइक अब एग्जाम को 2 पार्ट में कर दिया है, पार्ट 1 और पार्ट 2. ठीक है, तो सबसे पहले बच्चा ये एग्जाम देता है पार्ट 1, जो कि अराउंड 75 मिनट्स का होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव नेचर का होगा. ठीक है, इसको देने के बाद 15 मिनट का ब्रेक होगा और उसके बाद बच्चा सब्जेक्टिव एग्जाम देगा, व्हिच इज पार्ट 2. ठीक है, सो now what they are doing, like what how this exam is being conducted, every student who is writing part 1 can also write part 2. ठीक है, but पहले इसके मार्क्स इवैल्यूएट होते हैं, लाइक इसका रिजल्ट पहले डिक्लेयर किया जाता है और ये जितने भी बच्चे क्लियर करेंगे उन बच्चों का ही सब्जेक्टिव कॉपी चेक होगी, बाकियों की सब्जेक्टिव कॉपी चेक नहीं होगी, बिकॉज सब्जेक्टिव कॉपी चेक करने में एफर्ट जाता है. सो इफ अ स्टूडेंट इज नॉट एबल टू क्लियर दिस, ठीक है, तो फिर उनका सब्जेक्टिव कॉपीज चेक नहीं होगी. सो एसेंशियली एवरीथिंग रिमेन्स सेम. इंस्टेड ऑफ हैविंग एग्जाम ऑन 2 different days, now we are giving the same exam on the same, like both the exams on the same day and objective nature. इसका पहले रिजल्ट रिलीज होता है. ठीक है, रिजल्ट रिलीज होने के कुछ दिनों बाद फिर इसका रिजल्ट रिलीज होता है. सो यू नो कि किन लोगों ने स्टेप पार्ट 1 क्लियर करा है, कौन से लोग क्लियर नहीं कर पाए हैं. सो इवन क्लियरिंग दिस पार्ट इज अ बिग डील, बिकॉज तुम 300 बच्चों में सेलेक्ट हो रहे हो, अक्रॉस इंडिया बच्चे एग्जाम दे रहे हैं और तुम उसमें से 300 बच्चों में आ रहे हो. सो दैट इज अ बिग डील. और अगर तुम ये भी क्लियर कर रहे हो तो दैट इज इवन बिगर डील. तो मतलब यहाँ तक पहुंचने बहुत बड़ी बात होती है. इमेजिन करो 10th ग्रेड में अभी, या गिव मी अ गेस कि हाउ मेनी ऑफ यू गाइस, कितने मतलब 9th और 10th ग्रेड मिलाकर कितने बच्चे एग्जाम दे रहे होंगे इस साल?
जब मान लो 9th एंड 10th दोनों मिलाकर, या तो 10th ही बता दो या तो 9th ही सिर्फ बता दो, कितना हो जाओ, एक नंबर बताओ, गेस करो, व्हाट इज द अप्रॉक्सीमेट नंबर? या तनिष्का यू रेडी टू से? अच्छा ठीक है, लेट मी नो, बताओ बताओ बताओ, चैट में बताओ, देख सुन लेते हैं एक बार, कितना बड़ा गेस है आपका? 10 लाख, अच्छा 40,000 बच्चे, 20 लाख बच्चे 50 लाख बच्चे, 25 लाख, 10,000, 45,000, 1 लाख, 15K, 16 लाख, ना मुन्ना ना 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 ना। 10th ग्रेड को अगर आप सिर्फ देखो, सीबीएसई आईसीएसई मिला दो, जितने भी आपके 10th बोर्डर्स हैं सब मिला लो, आराम से सिर्फ 10th ग्रेड का 40-50 लाख जाता है बच्चे। वो तो फिर काउंटेड नंबर है, कितना अनकाउंटेड मेरे को पता भी नहीं। और उसके बाद 9th ग्रेड आप पकड़ोगे, 9th ग्रेड का सिमिलर होगा, तो समवेयर अबाउट, अगर मैं 7th 8th 9th 10 मतलब 10th थोड़ा हो जाता है, 7th 8th 9th के जो बच्चे होते हैं जो इस एज ग्रुप को देते हैं, कुल मिला के उनका नंबर होगा 80-90 लाख के आसपास। उस 80-90 लाख के जो लाख बच्चे हैं, उनमें से अगर पार्ट 1 भी क्लियर हो रहा है आपका, तो भाई साहब समझ लो कितनी बड़ी बात होगी ये। तो ये तो बात होगी कि जैसे आईसीसी में बोलते हैं ना कि आईसीसी वाले 10th ग्रेड में वो स्पेसशिप के बारे में पढ़ते हैं, तो वही मामला हो जाता है कि आप एग्जामिनेशन इतना बड़ा दे रहे हो, इसके बाद फिर आपको जो भी आने वाले एग्जामिनेशन उसमें कोई भारी भरकम टेंशन नहीं होने वाली है। सो दिस इज समथिंग विच is actually a feather in your cap, very important. So that's why it's so important in the outside country universities also, and in country universities as well. Yes. एक और चीज है कि बच्चों को ना बहुत अर्ली एक्सपोजर मिल जाता है कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड का। Absolutely. कि उनको आगे चल के किस तरह का कंपटीशन फेस करना है, किन बच्चों के साथ compete करना है, उसका एक छोटा सा प्रीकर्सर समझ लो, एक एक्सपीरियंस हो जाता है। सो फ्रॉम दैट एंगल आल्सो, और ये बहुत बड़ा प्रीकर्सर है भाई। ठीक है। So after this everything remains same. Like once the part 2 results are declared, then the camp happens. This year because of again COVID situation, the camp happened online. ठीक है, और जनरली कैंप के बाद डायरेक्टली टीम सेलेक्ट कर ली जाती है, बट बिकॉज इस बार ऑनलाइन कैंप हुआ था तो टीम सिलेक्शन के लिए एक और टेस्ट हुआ था। Alright. तो नेक्स्ट ईयर होपफुली ये कैंप ऑफलाइन मोड में हो जाएगा, गोइंग बाय द करंट कोविड सिनेरियो। होपफुली थर्ड वेव नहीं आएगी एंड होपफुली दिस कैंप विल हैपन ऑफलाइन ओनली। बिल्कुल। तो एक बात तो क्लियर हो गई मतलब आप लोगों ने कि जो पहला एग्जाम है IQATS वो तो ऑफलाइन ही होना है, क्योंकि पार्ट 1 पार्ट 2 भाई पार्ट 2 सब्जेक्टिव है, तो ये तो ऑफलाइन होना ही होना है। अब इसके बाद जो सिलेबस वगैरह जो हम सबके बारे में बात करेंगे, जो एलिजिबल है उन सबके बारे में बात करेंगे। डोंट वरी अबाउट इट, लेट्स गो फॉरवर्ड एंड टॉक अबाउट इट मच मोर। ठीक है भाई, अभी तक ऑल ऑफ यू गाइस आर हुक्ड इन, एक बार बल्ले बल्ले बोलो, ऑल ऑफ यू गाइस आर हुक्ड इन राइट नाउ, अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द एग्जामिनेशन एंड व्हाट इज दैट एग्जामिनेशन, समझ में आ गया सबको? ठीक है, ठीक है। अब वी विल गेट इनटू द पॉइंट कि भाई वेदांतु कैसे हेल्प करने वाले आपके, और वेदांतु ने क्या किया हुआ इसमें ऑलरेडी, एंड जिस तरीके से वेदांतु हेल्प करने वाला आप लोग, ये आपको चौक जाओगे आप लोग। ठीक है, सो लेट्स गेट इनटू दिस। ओके, सो हियर इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत सारे बच्चे इसको देख के शायद निकल जाएंगे बच्चों, लेकिन होल्ड फॉर इट। अगर कोई है आपका कोई छोटा भाई वगैरह है तो प्लीज लेट देम नो अबाउट इट। ओके विकास। सो सबसे पहले ना बात करते हैं इसकी, बिकॉज ये बच्चों के कंट्रोल से बाहर है जी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इस पे फोकस करो कि योर डेट ऑफ बर्थ फॉर दिस ईयर्स एग्जाम शुड फॉल बिटवीन January 1, 2007 एंड 31st December 2008। सो ये जो 24 मंथ्स का पीरियड है, इसी में आप बॉर्न होने चाहिए, ओनली देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस ईयर्स एग्जाम। ठीक है, सो इफ यू आर बॉर्न आउटसाइड दिस विंडो, सॉरी, ठीक है, तो फिर तुम इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, मौका छूट गया फिर आपका। हाँ, या तो छूट गया या फिर अगले साल आ जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी बर्थ डेट कब आ रही है। सो ये सबसे पहली चीज है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्राइटेरिया आता है, यू मस्ट बी एन इंडियन। सो व्हेन वी से दैट यू मस्ट बी एलिजिबल टू होल्ड एन इंडियन पासपोर्ट, बेसिकली मींस कि आपकी नेशनैलिटी जो है वो इंडियन होनी चाहिए। Correct. आप इंडियन स्कूल सिस्टम के पार्ट होने चाहिए। ठीक है, जिसके कट ऑफ डेट है कि इससे पहले से आपकी स्कूलिंग चलनी चाहिए, मतलब विच इज लाइक मतलब ये तो ऑलमोस्ट सेटिस्फाइड है, ये मेरे ख्याल से होगा। बहुत कम स्टूडेंट्स होंगे जो इन दोनों को नहीं कर रहे होंगे। ये हो गया तो बाकी सब हो जाएगा फिर। हाँ, ठीक है, एंड अगेन दिस इज समथिंग जो कि एक्सपेक्टेड है। अगेन इफ यू आर बोर्न विद इन दिस टाइम फ्रेम, मोस्ट प्रोबेबली आप इसी स्टैंडर्ड में बिलोंग कर रहे होंगे। ठीक है, सो बेसिकली प्राइमरीली यही है, बाकी चीजें तो हो ही जाती है। ठीक है, ये जो चीजें, दीज आर सीनियर ओलंपियाड्स, मोस्ट लाइकली यू आर नॉट अपीयरिंग फॉर ऑल दीस थिंग्स। अपीयरिंग फॉर दैट। तो एक बार पूछ ले भाई, कितने बच्चे यहाँ पे एलिजिबल हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर एलिजिबल? प्लीज लेट मी नो क्विकली। 2006 शानवी जी, कोई बात नहीं, 2006, अरे मिस हो गया। 31 December 2007, सही है, हो जाओगे, हो एलिजिबल हो। अरे आई कैन सी अ लॉट ऑफ यू गाइस आर एलिजिबल। क्या बात है, क्या दिस इज क्रेजी। कैन वी हैव क्लास फॉर ऑल ऑफ दिस पीपल, बिकॉज भाई साहब आने वाली है एग्जामिनेशन, तो आई एम प्रीटी श्योर यू कैन गोइंग टू बी देयर। अगर आप लोग नहीं हो एलिजिबल, लेकिन अगर आप जानते हो किसी इंसान को जो ये एग्जाम क्रैक कर सकता है तो दे सकता है, डेफिनेटली लेट देम नो अबाउट इट। ठीक है,
ऑल राइट, हेल्प एज मनी एज यू गाइस कैन, ऑल राइट, ठीक है, तो दिस द एलिजिबिलिटी, आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल। ओके, सो दिस इज व्हाट वेदांतो हैज गॉट टिल नाउ, लेट्स लुक इनटू दैट। या तो मैं लास्ट ईयर के एग्जाम का एक छोटा सा ग्लिम्स शेयर करता हूँ, ठीक है। अगेन मोर देन 50,000 स्टूडेंट्स wrote the exam. 310 students got selected in the part 1, out of which 16 were from Vedantu, and from within this 16, Vedant, his name is Vedant, he got selected for the from among like that 35 group. Right. ठीक है, He's and gone to the OCSE camp, that means. yes, he has recently attended the OCSE camp, and the results are awaited for the next 5-6 member team. Like Correct. he can be a part of that 5-6 member team. And having said that, he's too young for this year. Like he's eligible this year also, and he would be eligible for next year also. Like ये अपनी एज से बड़े लोगों के साथ compete कर रहा है, and he's winning the battle. This is fantastic. I'm very goosebumps when he's speaking about that. Look at the proudness, you know, Vikas sir has on his face when he's speaking about Vedant. This is really crazy, young people. All right, yes sir. उसके बाद ये सारे बच्चे हैं जिन्होंने रैंक स्कोर भी किए हैं. You have Parth, Siddharth, you know, Jain and Pradesh, all of them, you know, scoring. So we get scored 77 and became the top scorer for Vedantu from, okay, great, fantastic. So out of 310 students who got selected, 16 were from Vedantu. Yes, yes. How crazy is that? How crazy is that? How crazy is that? It's fantastic. So obviously we are quite inspired by the result that we got, and therefore this year we want to do even more. Yes. And hence this session is happening. So we have Vedant's name this time, like one student name or few students name. So you know we would like to really fill this entire screen with just your names and your photos. That's what you want. How we get the CBSE 10 results, CBSE 12 result, JEE result जैसे निकलता है ना, पूरा पेज भर जाता है बच्चों के इससे. तो हम चाहते हैं कि भाई जब ओलंपियाड्स के बाद तब भी वेदांतों का स्क्रीन ऐसे भर जाए आपके पेजेस से, यही चाहते हैं. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, बताते हैं कि कैसे करने वाले हैं वेदांतों. हम आपका है देखो. तो अब ये बात कि ये सेशन हम क्यों कर रहे हैं. सो गाइस, दिस अभिमन्यु नेम दैट यू आर सीइंग हियर, राइट, from this year onwards it is going to be a regular feature. Like this is a batch that we are launching to help students crack the first 2 stages, specifically stage 2. मतलब the idea is कि अगर हम stage 2 की तैयारी कराएंगे तो stage 1 तो automatically crack करेगा बच्चा. ठीक है, so basically हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स उस 35 के ग्रुप का पार्ट बने, and we'll be training the students for that, and this batch is aimed at fulfilling that aim. ठीक है, तो ये है बैच का नाम, एंड वी विल बी टारगेटिंग द सेकंड पार्ट, द सब्जेक्ट विल बी प्रिपेयरिंग यू फॉर दैट. And yeah, actually previous year we did not name this as Abhimanyu. This is the first time we're naming it Abhimanyu, and we wanted you guys to be the you know what to say, flag bearers. Yes, flag bearers for this. So this is your batch, people. So the people who are going to join Abhimanyu batch, they're going to the pilot batch for the first ever batch named as Abhimanyu. It's really crazy, and we'll tell you the features about it. उसके बाद मेरा एक सवाल आया आप लोगों से कि what do you guys think should be the Abhimanyu batches, you know, the course, entire course, how much fees you should be paying. You listen to the features and then we'll talk about it. ठीक है, you are going to be fainting off right now. Okay, all right. So what would the features of Abhimanyu batch, Vikas sir? So sir, ये बैच अभी जैसे ना December 1 से स्टार्ट होगा, and the exam is in January 9. Okay. So we have 140 days around time to prepare students for this. Correct. So in this we'll be delivering some theory sessions to them students. हम उनको theories पढ़ाएंगे, which will be helpful to the students. We'll be conducting their test, weekly test उनके conduct होंगे, जो कि जो IOQJS का जो actual pattern है उससे match करेगा, like same time frame. उसका जो टाइमिंग होगा वो भी एक्चुअल एग्जाम के टाइमिंग पर ही रखा है, सो दैट कि स्टूडेंट्स की बॉडी क्लॉक भी उसके हिसाब से सेट हो सके. लाइक हम बच्चों को ट्रेन करेंगे कि उस पीरियड में जब उनको एक्चुअल एग्जाम देना है उसी पीरियड में उनको एक्टिव रहने की एक हैबिट डेवलप हो, बॉडी क्लॉक उनकी उसके अकॉर्डिंग हो. आई थिंक आई हैव स्पोकन अबाउट दिस अ लॉट ऑफ टाइम कि आपको अपना यू नो शेड्यूल बदलना होता है आपके एग्जामिनेशन टाइमिंग के हिसाब से. मैंने बहुत बार बताया हुआ है, 10th वालों को भी 9th वालों को सबको बताया हुआ है. लेकिन एक बात मैं सबसे ज्यादा अच्छी इस बात की लगी है कि यू नो आपके एग्जामिनेशंस हो चुके होंगे. अगर आप 8th में हो, 9th में हो, 10th में हो, whatever your thing, December is that period when you are actually free. Yes. क्योंकि आपका नवंबर में एग्जामिनेशन हो जाएगा. बहुत सारे बच्चों का 8th और 9th वालों को तो एग्जामिनेशन ऑलरेडी हो चुका होगा. So that is the exact reason why I'm really happy you can actually take some effort to participate in this, and once you find out what is the fees for this, you're gonna actually participate in it. At least you're gonna give it a shot. Let me tell that to you. Okay, all right. The other features. Right. So जो हम लोग टेस्ट कंडक्ट करेंगे, ठीक है, अगेन एज आई सेड कि वो IOQJS पैटर्न पे होंगे, यानी कि उसमें एक पार्ट 1 होगा जो कि ऑब्जेक्टिव नेचर का होगा, एंड एक पार्ट 2 होगा जो कि एक सब्जेक्टिव नेचर का होगा. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज विल बी चेकिंग कॉपीज फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट हु इज पार्ट ऑफ दिस बैच.
उनकी हम Okay. कॉपीज चेक करेंगे, उनको प्रॉपरली स्टेप्स में उन्होंने क्या गलती करी है, क्या उनको करना चाहिए था, ये बताएंगे। किस स्टेप के लिए कितने मार्क्स उनको मिल गए या कितने मार्क्स उनके कट गए, बिकॉज आई थिंक दैट दिस पर्टिकुलर थिंग इज मिसिंग in any institute or whoever is trying to prepare students for IEO-QJS. They are generally not checking the subjective copies. Like they give some feedback to the students, only to the select students, not to the majority of the students, but we'll be giving feedback to each and every student who is part of this batch. So Alright, so you're telling in terms of offline, online, जो भी वहाँ पे Yes. है outside the market में. Yes. So none of the people actually do this. yes, Fantastic. if they do it, they do it only for the toppers. Like if I have a batch of 40 students, maybe for 4 or 5 students I'll be checking the copies personally and I'll be giving them personal inputs, but not for the entire batch. So Fantastic. this is something that we are going to do. That is really great, I guess. Okay, alright. So yeah, all these things are definitely there. The teachers are going to be the finest. I can assure you of that. And people who have been associated with Vedantu already would be knowing this already. Yes, So yes, yes. And of and course you get the assignments and post-assignment discussions. yeah. And indicators के बारे में तो सर ने बता दिया आपको, ये भी है. I think this is something very important which I think we should be highlighting this. Yes. So we realized this recently. Like actually, I realized it firsthand. When I say I realized it, I had this at the back of my mind कि एक mental health बच्चों को शायद बहुत important है, especially in these COVID times, and Right. these things will affect the performance of the student. But when I interacted with the students who have just now appeared for JEE Advanced Examination, Right. हमने रियलाइज करा कि ना इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा था बच्चों के ऊपर। जो कोविड सिचुएशन थी उनके घर में बहुत मतलब कईयों के घर में बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन अराइज हो गई थी, उनकी पढ़ाई बहुत हैम्पर हो रही थी। एंड देन व्हाट वी डिड, वी कंडक्टेड देयर सेशंस विद परोक्ष भैया, Right. so who takes care of the mental well-being of Vedantu employees also and students also. Correct. So उनके साथ इंटरेक्ट करने से बच्चों को काफी फायदा हुआ। दे फेल्ट रिलैक्स्ड। ऑब्वियसली उनकी प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं हो गई, जिसकी जो प्रॉब्लम थी वो थी, बट उसको झेलने की हिम्मत आ गई, या एक आउटलुक चेंज हो गया प्रॉब्लम्स के प्रति कि हमको कैसे डील करना चाहिए, हाउ वी कैन स्टे स्ट्रांग इन टाइम ऑफ एडवर्सिटी। तो वो एक चीज थी। एंड आई थिंक कि जिस एज के बच्चों को हमें तैयार करना है उनके लिए ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट बहुत है। important रहता है. तो मेरे ख्याल से कोविड हो या ना हो, आई एम अज्यूमिंग कि भाई मेंटल हेल्थ ड्यूरिंग एग्जामिनेशन एक्सट्रीमली यस डेफिनेटली। ग्रेट है. इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो हम पूर्ण करेंगे, बट आपने देख लिया जो जनरल फीचर्स हैं, और उसके अलावा जो वेदांत के जनरल फीचर्स लाइक क्विजेस, लीडर बोर्ड्स, इनसाइड द क्लास डाउट थिंग विल बी क्लियर बाय द बेस्ट ऑफ द टीचर्स आउट देयर, नोट्स मिल जाएंगे आपको सेशन के बाद अलॉन्ग विद द हैंड रिटन नोट्स ऑफ द टीचर्स. ये सारे फीचर्स तो जनरल हैं अपार्ट फ्रॉम ऑल द फीचर्स व्हिच यू जस्ट लर्न राइट नाउ. सो पीपल गिव इट अ शॉट कि व्हाट कुड बी द फीस फॉर Abhimanyu batch. What do you guys think? I'm not in office. I'm not in the office, people. Vikas sir is in my home. Sorry for calling him and making so much work. But yeah, what could be the fees, people? Give it a shot. Okay. All right. 6,000, 2,000, 5,000, 20,000, 2,000, 5,000, 6,000. Okay. All right. 5K, 6K, 2K, 200. अच्छा ठीक है. Free भी चल रहा है, 0K भी चल रहा है. अच्छा. All right. Great, fantastic. हरी सर का कॉल भी आ रहा है. हरी सर कॉल यू लेटर. 2,550, 3K, 7K हो गया. 1 million ऑल्सो 45K. अयो 7K लग रहा है ना, इतना एफर्ट डालने बाद तो 7K होगा, बिल्कुल होगा. ओके, सो शैल वी गो टू द वेबसाइट देन. ओके, तो हम क्या करेंगे बच्चों, we'll definitely go on to the video in which you guys are in right now, है ना. तो हम जल्दी से टैब यहाँ पे ओपन कर रहे हैं, YouTube पे जा रहे हैं, ठीक है. देख लो आप YouTube पे हम आ गए. इनको तो जानते ही होगे आप, काफी फेमस है. एनीहाउ, ठीक है. सो हियर इज अ सेशन गोइंग ऑन. आप इस सेशन में ऑलरेडी हो तो आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, बट इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाओगे तो यू विल फाइंड आउट द फर्स्ट लिंक, रजिस्टर फॉर अभिमन्यु बेंचमार्क टेस्ट फॉर एब्सोल्युटली फ्री. ये है ना, इस पे क्लिक करोगे आप एंड विल फाइंड आउट द प्राइस इज एक्चुअली 0. देयर इज नो प्राइस एट ऑल फॉर दिस बैच और फॉर दिस टेस्ट. और ये टेस्ट क्यों है ये विकास सर आपको बताएंगे. विकास सर बता दीजिए क्या है. So guys, again description box में जो लिंक था आप उस पर क्लिक करोगे, you will get to this page and when you click on buy now, ठीक है, 0 rupees है, you will get enrolled in a batch. ठीक है, ये बैच अभिमन्यु बैच नहीं है. मतलब when you click on this and you get enrolled, you are not getting enrolled for the batch, but you are getting enrolled in a batch which we will utilize to conduct some entrance test. Right? So though the fee of this course is 0, right, but merit is needed. Merit is free, you can say. Absolutely. ठीक है. So you would have to clear a test, Yes. which is the Abhimanyu benchmark test, ABT कह लो आप. ठीक है, तो आपको इसको टेस्ट को क्लियर करना पड़ेगा. Again, the test is absolutely free.
आप टेस्ट में आइए, टेस्ट दीजिए, एंड टेस्ट का प्रोसेस क्या है अभी अभी आपको विकास सर बताएंगे, लेकिन आप टेस्ट क्लियर करते हो तो अभिमन्यु बैच में जुड़ोगे, वो भी एब्सोल्युटली फ्री। सो the fees for the batch is zero. Yes. And there are something else also related to this test and benefits of getting into Abhimanyu batch जो भी विकास सर आपको So effectively we can say कि अभिमन्यु बैच की फीस कुछ स्टूडेंट्स के लिए नेगेटिव होगी, नेगेटिव होगी, like you will not be paying us but you would be नेगेटिव receiving, लैक्स में होगी, कैसे होगी बता दो। yes, you would be receiving from us. So Yes. having said that, there is one thing that I would like to address यहाँ पे ना, जैसे बहुत सारे बच्चे ना they aspire or they aim to prepare for IOQJS or they aim to fight for junior science olympiad, so why not give everyone the opportunity? मतलब ये एक क्वेश्चन है, जैसे बच्चे कई बार पूछ लेते हैं ना सिर्फ कि आप टेस्ट क्यों ले रहे हो, like why can't I prepare for it, like let's say if I don't clear the selection test, does that mean कि I'm not good enough to prepare? Right. तो guys मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि देखो ये जो एग्जाम है एक्चुअल में इसकी प्रिपरेशन कई बार आपके लिए डेट्रीमेंटल भी हो सकती है इफ यू आर नॉट द राइट कैंडिडेट। सो अंडरस्टैंड दिस दैट एवरीवन हैज देयर ओन पेस ऑफ लर्निंग, ठीक है, एंड दिस एग्जाम और दिस द प्रिपरेशन फॉर दिस एग्जाम शुड बी डन बाय स्टूडेंट्स हु लाइक टू स्टडी साइंस, फर्स्ट ऑफ ऑल जिनका पैशन है साइंस पढ़ना, ठीक है, हु आर रेडी टू प्रिपेयर एडवांस कॉन्सेप्ट, ठीक है। जैसे जनरली क्या होता है कि जो फाइनल एग्जाम होता है उसके अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो 8th और 9th ग्रेड के नहीं होते हैं, वो 11th 12th ग्रेड तक के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सो यू व्हाइल यू आर इन 8th and 9th स्टैंडर्ड यू वुड बी प्रिपेयरिंग फॉर द करिकुलम ऑफ 11th 12th ग्रेड ऑल्सो, ठीक है। सो कीप दैट इन माइंड। सो अब जैसे अगर मुझे पता है कि एक बच्चे को मैं इसकी तैयारी करा के मे बी उसको मैं बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर, आई बी सबड्यूइंग हिम टू इनॉर्मस प्रेशर, या उसकी 8th 9th की पढ़ाई को मैं हैम्पर करूंगा, सो व्हाई वुड आई डू दैट टू हिम, मतलब मैं सो देयरफॉर वी आर कीपिंग अ सिलेक्शन टेस्ट टू इंश्योर कि जो बच्चा हैंडल कर सकता है वही आ रहा है, सो दैट दूसरे बच्चों के ऊपर हम अनड्यू प्रेशर क्रिएट नहीं कर रहे हैं। सो आई थिंक दिस बिकम्स आल्सो एन एलिजिबिलिटी सॉर्ट ऑफ अ थिंग कि इसमें वही बच्चा कोशिश कर पाएगा जो जानता है कि भाई मैं थोड़ा सा एकेडमिकली इंक्लाइंड हूँ और आई कैन टेक अ चैलेंज। एकेडमिक इंक्लाइंड होना जरूरी नहीं होता कि आप चैलेंज, जो बच्चे एकेडमिक इंक्लाइंड नहीं होते वो भी डेफिनेटली कर सकते हैं, बट दे हैव टू बी रेडी कि वो मेंटल प्रेशर झेल पाए, वो थोड़ा सा वो चैलेंज ले पाए। And that's why to ease down the mental pressure, we have sessions like the R1 session, and of course, you have teachers who do not give any extra pressure. But of course, जब इतना ज़्यादा कुछ पढ़ने में जाता है तो वैसे ही pressure लेते ही हो। तो that is something which you have to be really, really thoughtful about. But fees terms में, financial terms में, it's absolutely zero. Yes. मैं अब टेस्ट के बारे में बताता हूँ, आई थिंक थोड़ा सा फासन अप करता हूँ मैं चीज़ों को, ठीक है। सर टेस्ट के बारे में बताने से पहले एक चीज़ जो आई थिंक वी शुड टेल द स्टूडेंट्स कि जब वो सेशन के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे वहाँ पे 3 लिंक होंगे, ठीक है, तो पहले एक बार उन तीनों लिंक्स के बारे में बता देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ऑलराइट, तो बच्चों हम YouTube में फिलहाल अभी दोबारा वापस जा रहे हैं हमारे सेशन में। पहला लिंक आपने क्लिक किया, आप यहाँ पे लैंड हो जाते हो टू गेट इनटू द बेंचमार्क टेस्ट, ठीक है। अब सेकंड लिंक क्या देख लो। तो सेकंड लिंक बेसिकली अगर बच्चा क्लिक करता है तो यू विल बी गेटिंग टू अ पेज, टेलीग्राम पेज पे आ जाओगे आप, है ना। सो ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप। इसका पर्पज ये है कि हमको अगर आपसे कुछ कम्युनिकेट करना होगा, कुछ इंस्ट्रक्शंस देने होंगे रिगार्डिंग दी एंट्रेंस प्रोसेस, सो इट विल बिकम ईजियर फॉर अस टू कम्युनिकेट विद यू। हम यहाँ पर इस टेलीग्राम चैनल के अंदर इन्फॉर्मेशन पोस्ट करेंगे। सो इफ यू आर ज्वाइनिंग दिस चैनल देन यू आर मेकिंग श्योर कि एंट्रेंस रिलेटेड कोई सी भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस नहीं होगी। सो दैट्स द पर्पज ऑफ दिस चैनल। सो डू ज्वाइन दिस चैनल एंड ऑफ कोर्स इसको ज्वाइन करने के लिए यू शुड हैव टेलीग्राम इन योर फोन। सो फोन एंड एज वेल एज ऑन डेस्कटॉप। बहुत अच्छे बोलते हैं लिंक लगे कुछ हो नहीं रहा क्योंकि हमारे डेस्कटॉप भी नहीं है बेटा टेलीग्राम। डेस्कटॉप में टेलीग्राम डाउनलोड करें तो इस लिंक को आप फोन पे एब्सोल्युटली फाइन, ठीक है। ठीक है, और जो तीसरा फॉर्म है वो बेसिकली बच्चों की इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए, लाइक नेम वगैरह तो कुछ फील्ड्स होंगे, एक सिंपल फॉर्म है। सो 3 थिंग्स दैट यू हैव टू डू, लाइक इस बैच में एनरोल कर लेना है सो दैट यू आर एबल टू टेक द टेस्ट, यहाँ पे एनरोल कर लेना है सो दैट एनी इन्फॉर्मेशन दैट वी वांट टू पास ऑन टू यू वो आप तक पहुंच जाए, और इस पे क्लिक करना, फॉर्म ओपन होगा, फॉर्म को भर देना ताकि आपकी इन्फॉर्मेशन हमारे तक पहुंच जाए, ठीक है। सो लाइक ये 3 फॉर्म पे, ये तीनों लिंक पे आपको क्लिक करना है, राइट। अब मैं आता हूँ सिलेक्शन टेस्ट के ऊपर। सो गाइस 2 डेट्स हम लोगों ने दी हैं जिस पे टेस्ट होंगे, 17 नवंबर को भी होगा और 21 नवंबर को भी होगा। दोनों टेस्ट शाम को 5 बजे होंगे। Why we are giving 2 dates? Because due to whatever reasons you may have to miss the 17th November test. If that happens, you have another opportunity to give the test, ठीक है। A student may choose to give a test only on 17 or only on 21st, or the student may also choose to give both the test. If the student has given both the test, we'll be considering the better performance in the two. Yeah, best of the two. And how amazing is that? So the idea behind it is कि हम चाहते हैं कि आप 2 टेस्ट भाई जितना हो सकते हैं आप टेस्ट दो, जरूर दो, आप बिल्कुल ट्राई आउट करो। इसलिए हम 2-2 दिन भी दे रहे हैं यहाँ पे
तो अगर गलती से भी कोई मिस होता है तो देख लो। और मेरे ख्याल से 17 नवंबर आपका वेडनेसडे पड़ रहा है, Yes. 21 नवंबर आपका संडे Sunday. पड़ रहा है। जो बच्चे वेडनेसडे नहीं दे पा रहे हैं वो संडे कम से कम दे दें। जो बच्चे दोनों देना चाहते हैं दोनों दे दें। जो बच्चे चाहते हैं कि 17 नंबर देख के उनको ठीक से नहीं हो पाया टेस्ट, तो 21 को दे दें भाई, बिल्कुल दे दें। और उसके अलावा मेरे ख्याल से होना जरूरी है अभी, तो भाई साहब देख लो, ठीक है। हम नहीं चाहते कि हर एक बच्चा दे। और जो भी बच्चा टॉप 3 मतलब आपका जो मेरे ख्याल से विकास सर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 17 नवंबर का जो टेस्ट होगा उसका रिजल्ट 19 नवंबर को आएगा। Yes. और 21 नवंबर को जो टेस्ट होगा उसका रिजल्ट 23 नवंबर को आएगा। Yes. और इन दोनों टेस्ट के रिजल्ट्स आने के बाद हम थोड़ा सा इवैल्यूएट करेंगे कि भाई टॉप 3 पे कौन है। Yes. और टॉप 3 जो विनर्स होंगे, जो टॉप 3 विनर्स हैं, अगर हमारे बैचेस में एनरोल कर रहे हैं फॉर एब्सोल्युटली फ्री, जो आपको पता है 0 रुपीस पे अभिमन्यु बैच है, जो अगर वो बच्चे एनरोल कर रहे हैं तो भाई उन टॉप 3 विनर्स को यू विल बी गेटिंग Amazon vouchers of 17,500 rupees each. Yes. ठीक है, वो भी हमारे तरफ से। लो, खुश रहो भाई, खुश रहो। ठीक है, टेस्ट कहाँ होगा? टेस्ट कहाँ होगा सर? ऑनलाइन टेस्ट आप बच्चा अपने घर पे बैठ के देगा। ऑनलाइन टेस्ट जानते हो तो कहीं होगा थोड़ी, ऑनलाइन ही होगा। ठीक है, ग्रेट। सो दैट्स द बेस्ट पार्ट आउट ऑफ इट। कुछ मिस हो गया यहाँ पे? नहीं, एवरीथिंग इज डन। एवरीथिंग इज डन हियर, ऑलराइट। तो बच्चों ये हो गया सोने पे सुहागा। समझ में आ गया? पैसे भी दे रहे भाई, तुम करो, प्राइस दे दो। अब मेरे ख्याल से वो पार्ट मिस हो गई कि जो बच्चा अभिमन्यु बैच में अच्छा करता है उसका क्या होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो सिर्फ ध्यान से सुनना, मिस नहीं करना इस बात में। हाँ, अब आते हैं कि सर तो कह रहे थे कि लाखों में जाएगा। हाँ। जो नेगेटिव फीस है लाखों में कैसे चला जाएगा वो। अब मैं बताता हूँ लाखों में कैसे जाएगा। लाखों में ऐसे जाएगा कि इस अभिमन्यु बैच के जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो स्टूडेंट्स 9 जनवरी को फ्री हो जाएंगे। IUQJS के एग्जाम हो गया, दे दिए एग्जाम, बात खत्म। ठीक है, तो क्या वेदांतु से रिलेशन खत्म? नहीं। इन बच्चों को हम इमीडिएटली 10th क्लास की पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। ऑफ कोर्स एक वहां पे भी एक छोटा सा टेस्ट होगा, ठीक है, और उस टेस्ट के बेसिस पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे। फीस अभी भी 0 रहेगी। एंड दिस बैच आफ्टर पोस्ट अभिमन्यु जो बैच चालू होगा, दिस विल बी ए 3 ईयर कोर्स, ठीक है, जिसमें हम जो बच्चा इंजीनियरिंग की तैयारी कराना चाहता है उसको जेई की तैयारी कराएंगे। जो बच्चा मेडिकल की तैयारी करना चाहता है, लाइक नीट की तैयारी करना चाहता है, उसको नीट की तैयारी कराएंगे। एंड 3 ईयर कोर्स आपको फ्री में मिलेगा। एंड हैविंग सेड दैट, आई एम हेडिंग द टॉपर डिवीजन एट वेदांतु। लेट मी टेल यू कि वेदांतु के जो टॉपर्स को पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, दे विल बी टीचिंग यू। हाउ फैन कैन बी अ क्लास फॉर दैट मैन? आई एम लिटरली गेटिंग गूज़बम्स राइट नाउ। आप समझ पा रहे हो? टेक दिस इन फॉर अ मोमेंट, आई एम गोइंग टू रीइटरेट व्हाट यू सेड राइट नाउ। जो बच्चा आपका अभिमन्यु बैच में है, बैच के बाद जैन 9 के बाद एक और टेस्ट होगी, और जो बच्चा टेस्ट क्लियर कर रहा है उनका 10th ग्रेड, 11th ग्रेड, 12th ग्रेड, तीनों के तीनों ग्रेड फ्री में पढ़ाए जाएंगे बाय द बेस्ट टीचर्स ऑफ द कंट्री। यू हैव गॉट 1500 प्लस सिलेक्शंस, टॉपर्स डिवीजन जो पढ़ाते हैं, फॉर एब्सोल्युटली फ्री। तो आप खुद कैलकुलेट करो, 10th ग्रेड का आप वेदांतु का कोर्स प्राइस ले लो। वेदांतु का कोर्स प्राइस 10th ग्रेड के लिए समवेयर अबाउट 30 के होता है इन द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर। 11th ग्रेड के लिए 2 साल का मेरे ख्याल से दोनों 11th 12th दोनों मिलाकर 1 लाख जाता है, तो हो गया समवेयर अबाउट 1.5 लाख का। सो 1.5 लाख का जो कोर्स प्राइस है 0। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, इन केस बच्चे से दोनों टेस्ट मिस हो जाए, अच्छा, इज देयर एनी थर्ड वे? ठीक है, यस देयर इज। ऑलराइट। वो जो फॉर्म हम लोगों ने कहा था ना कि एक फॉर्म है जिसको आप भर दो, उसमें एक फील्ड है विच आस्क्स कि आपने लास्ट ईयर IUQJS क्लियर किया था क्या, लाइक पार्ट 1 जो स्टेप 1 था वो आपने क्लियर किया था क्या? इफ यस, ठीक है, लाइक लास्ट ईयर आपने दिया था और इस साल भी आप एलिजिबल हो। अगर आप लास्ट ईयर उस 300 स्टूडेंट्स की लिस्ट में सेलेक्टेड थे तो भी आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। ये टेस्ट आपको फिर देने की जरूरत नहीं है अनलेस यू वांट टू विन द वाउचर्स। मतलब फिर आपके लिए ये जो टेस्ट है ये केवल एक वाउचर जीतने का तरीका बन जाएगा। सो दिस इज अगेन समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू कीप इन माइंड कि अगर आपने लास्ट ईयर IUQJS का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्लियर किया था एंड यू हैव बीन पार्ट ऑफ दैट 310 odd students who were selected, then you just have to let us know. You have to provide us with your result sheet, and once we verify your result, you will be enrolled in the batch. Fantastic. But I'm still taking that 10th, 11th, 12th तीनों के तीनों साल बढ़िया, very much taking it. But anyhow, अब बहुत सारे बच्चे विकास से ये पूछ रहे हैं कि ये जो टेस्ट होने वाला है इसका सिलेबस क्या है? हाँ, तो इसका जो सिलेबस होगा ये बेसिकली जो मतलब 8-9 ग्रेड है उससे थोड़ा सा ऊपर जाएगा, मतलब ठीक है ना, मतलब ये थोड़ा जेई एडवांस लेवल तक चला जाएगा। तो बट हाँ, प्रिपरेशन करनी पड़ेगी आपको क्योंकि भाई इतना बड़ा टेस्ट है। टेस्ट जब इतने बड़े सवाल आते हैं तो भाई बेंचमार्क टेस्ट तो कम से कम उस लेवल पे होना ही चाहिए ना। तो बट देयर इज नथिंग
टू नॉट ट्राई इट आउट, ऑफ कोर्स ट्राई इट आउट। और क्योंकि अगर आपको हार्ड लग रहा है तो हम प्रीटी श्योर जो बाजू में एग्जाम है उसको भी हार्ड ही लग रहा है। यस, तो करो बिल्कुल करो, ठीक है। ग्रेट। सो 8-9 के लेवल से थोड़ा ऊपर जाएगा तो आप समझ लो 10 लेवल वाला पकड़ लो, ठीक है। ओके ऑलराइट, तो ये फीचर्स हमने बता दिए आपको दोबारा। एक और बार थोड़ा रिट्रेट कर देते हैं कि भाई हाउ टू बी पार्ट ऑफ अलुमनी, अभी मैं ये बोलूंगा, ठीक है। सो रजिस्टर फॉर एनी ऑफ और बोथ ऑफ द सिलेक्शन टेस्ट व्हिच यू नो अभी आपने देखा 17 नवंबर का या 21 नवंबर का रजिस्टर करो। रजिस्टर करने का आपको पता है लिंक डिस्क्रिप्शन है, सबसे पहला लिंक क्लिक करो, बाय नाउ करो, सिंपल, ठीक है। उसके बाद अपीयर फॉर द टेस्ट 17 को देना, 17 को दो, अच्छा गया तो काफी अच्छी बात है, या तो दोबारा दो, 21st विल टेक बेस्ट ऑफ द टू। 17 का रिजल्ट आएगा 19 को और 21st का रिजल्ट आएगा 23rd को। एंड आउट ऑफ द बोथ द टेस्ट सबसे जो टॉपर 3 होंगे अगर वो हमारे बैच में जुड़ते हैं तो 17,500 रुपीस ईच यू विल बी गेटिंग Amazon वाउचर्स फॉर कंप्लीटली देयर। और उसके बाद हाँ, द टॉप परफॉर्मेंस ऑफ द अभिमन्यु बैच, जो अभिमन्यु बैच के जो टॉप परफॉर्मर्स हैं उनका 10th ग्रेड 11th ग्रेड 12th ग्रेड जो है वो जाएगा एब्सोल्युटली फ्री coaching, completely free coaching for either you're studying for JEE or you're studying for NEET, doesn't matter, but it's going to be absolutely free coaching from Vedantu completely throughout the year, so don't worry about that. उसके बाद हाँ इतना ही है, and I think we have features हाँ एक चीज रह गई थी, इन केस टेस्ट मिस होता है या अगर आप लास्ट ईयर ऑलरेडी सेलेक्टेड हो, फॉर्म भरो, लेट अस नो, यू गेट अ डायरेक्ट एंट्री टू द बैच। तो let the form is the third link, second link भी भर देना, टेलीग्राम चैनल का जुड़ जाना। उसके अलावा आई थिंक हाँ उसके बाद 1 दिसंबर को आपका बैच स्टार्ट हो रहा है और ये आपका क्लास शेड्यूल होगा वीकली बेसिस पे, ये होने वाला है आपके पास। सो यू हैव फिजिक्स 2 days per week, केमिस्ट्री 2 days per week, बायोलॉजी 2 days per week और जूलॉजी बॉटनी 2 days per week divided into botany and zoology. बायोलॉजी 2 दिन है, पहले एक दिन बॉटनी होगा, एक दिन जूलॉजी होगा, समझ रहे हो? 8-9 पढ़ के बॉटनी जूलॉजी पढ़ रहे हो। तो वन थिंग आई वुड लाइक टू हाईलाइट हियर जो मेरे दिमाग में अभी आई आफ्टर लिसनिंग टू व्हाट विकास सर वाज सेइंग कि भाई students who are in 8th and 9th and who are in 10th or whatever your grade you are in, if you are attempting this, I think after that board examination becomes a piece of cake then. बिल्कुल Even going ahead 11th grade examination or 12th grade examination or JEE advanced JEE main हो, they start becoming a bit more easier. मतलब मैं बताऊं जैसे लास्ट ईयर के जो बच्चे थे जिन लोगों को हमने पढ़ाया who got selected, Correct. उन्होंने कभी हमसे ये पूछा नहीं कि सर बोर्ड एग्जाम आ रहा है क्या करें, बोर्ड एग्जाम के लिए छुट्टी दे दो, हमें प्रिपरेशन करना है, लाइक यू विल स्टॉप डिस्कसिंग बोर्ड आफ्टर यू हैव बिकम पार्ट ऑफ दिस बैच। वो रिडंडेंट होगा कि वो मतलब क्या बात करनी हो, तो अच्छी परफॉर्मेंस उसमें बस आगे देना होगा हाँ, एग्जामिनेशन में इतना ही। exactly. समझ लो, तो that confidence level is what we want you guys to achieve, correct? And that proudness which you will have from your parents' face and from our teachers' face, that's what we want you to achieve. All right, people. I think that's all. This one more information for you guys. So, if in case you're interested in getting into the IOKGS, तो भाई उसका भी वो official है ना examination, तो उसमें तो register करना पड़ेगा जैसे boards के लिए करते हो आप, तो आपको इस लिंक पे जाना है, ठीक है? ये लिंक हम दिखा देंगे, ऑफिशियल अकाउंट है, हमारा नहीं है। आप इस लिंक पे जाओ और IOKGS एग्जामिनेशन के लिए एंटर करो अगर आप उस बर्थ ड्यूरेशन में आप होगा, ठीक है? लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 15th of November, do not miss that out. It is already I guess 8th of November, so definitely do not miss that out, ठीक है? Apart from that, yeah, I guess that's it, people. You guys tell us if in case you have any doubts. Sir, zoo and botany is biology only. हाँ मुझे पता है, इसे तो बोला बायोलॉजी 2 दिन का। मेरे को लगता है शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया था। ठीक है, ग्रेट, ठीक है। और बताओ बच्चों, कोई और डाउट्स है? एक बार यार जाने से पहले एक बार क्या विकास के लिए तालियां हो जाए, बिकॉज़ ही जस्ट केम डाउन to this particular channel just to let you guys know that there is a very good opportunity for you guys to change your paths, and I would like to know from each and every one of you guys कि भाई लग रहा है पाथ चेंज हो सकता है, जिंदगी बदल सकती है, तालियां हो जाए इस बात को लेकर। How many students will be selected in the batch? There is no number. Everyone who crosses the benchmark test, they will be selected. No number. Great. हो गया, दिल हो गया, तालियां बज गई सर के लिए, क्या बात है। सर मेरे को बड़ा मजा आया सेशन करके बच्चों के साथ, मतलब छोटे छोटे बच्चों के साथ। बिल्कुल यहाँ पे थोड़ी और लेवल पे होती है, राइट। मॉक टेस्ट मिलेगा इसके लिए? मॉक टेस्ट मिलेगा सर? हाँ बिल्कुल मिलेगा ना, बिल्कुल मिलेगा। मतलब बेंचमार्क टेस्ट के लिए मॉक टेस्ट मिलेगा? नहीं, बेंचमार्क टेस्ट के लिए नहीं मिलेगा। नहीं सर, तो कह दिया ना कि भाई हमारा वन ऑफ द हाइलाइट्स ये है कि आप 2 हफ्ते मतलब हाफ ऑफ द थिंग्स यू आर स्टडीइंग एंड हाफ ऑफ द थिंग्स टाइम यू आर राइटिंग ऑन द टेस्ट एंड आल्सो ऑफ द टाइम of the actual test, so that your brain is active during that time. ऐसे जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है वो 17 को मॉक टेस्ट की तरह यूज कर सकते हैं और 21 को फाइनल टेस्ट दे सकते हैं। समझ रहे हो? All right, सर पढ़ेंगे कहाँ से? पढ़ेंगे कहाँ से सर? वो सारे हमारे टीचर्स बताएंगे, कंटेंट भी देंगे, पढ़ाएंगे भी, सब करेंगे। बेंचमार्क टेस्ट के लिए पढ़ना होगा बच्चों को, तो कौन सा सोर्स हो सकता है आपके हिसाब से सबसे बढ़िया? वेल मेरे हिसाब से अभी तक आपने जो भी पढ़ा है आप उसको समराइज, मतलब ट्राई टू कंसोलिडेट ऑन दैट, लाइक आपकी जो नोटबुक्स हैं, जो भी आपने
पढ़ रखा है अभी तक, यू हैव टू कंसोलिडेट ऑन दैट ओनली। तो अभी कुछ फ्रेश सोर्स उठा के फायदा नहीं है, 8 दिन में कुछ। तो हाँ। बेसिकली दैट मींस कि आपने जो अभी तक पढ़ा हुआ है, बेसिक्स जो आपका है, उसको आप स्ट्रॉन्ग कर लो। स्ट्रॉन्ग हो गया, अगर वक्त बच जाता है बेंचमार्क टेस्ट में, क्योंकि अभी 10 दिन बाकी है, तो अगर वक्त बच जाता है, आपको लगता है कि आप कर सकते हो, फिर आप पढ़ो 9th का पढ़ो, 10th का पढ़ो, 11th का थोड़ा सा पढ़ो, ठीक है। इज देयर एनी बुक्स सेपरेटली कमिंग फॉर आईपीजीएस? सेपरेटली नो, मतलब इस तरह से कुछ नहीं है। तो समझ लो कितना रह रही है, देख, ठीक है बच्चों। ऑल राइट, ठीक है सर, ये क्या सीबीएसई? अरे भाई फर्क नहीं पड़ता, सीबीएसई आईसीएसई जो भी फर्क नहीं पड़ता, जो भी इस एज ग्रुप में वो आप दे सकते हैं, ठीक है। और बताओ, हाउ मच इज द बेंचमार्क? फ्री इज द बेंचमार्क। अच्छा, यू आस्किंग व्हाट इज द बेंचमार्क? कट ऑफ मार्क्स कितना होगा? वो रिजल्ट्स, बच्चों के रिजल्ट्स निकलेंगे तो उनके जो मार्क्स आएंगे उसी के बेसिस पर निकलता है वो। कट ऑफ मार्क्स बेटा हर साल चेंज हो जाता है, जेई का भी हो, किसी का भी। वो बच्चों की परफॉर्मेंस के बेसिस पे कैलकुलेट होता है। करेक्ट, और कितने बच्चे दे रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। यस तो चेंज होता रहता है, डोंट वरी, आपके लिए कम रखेंगे। अच्छा, ग्रेट अपॉर्चुनिटी, यस यस। सर एज क्या है? 2007 जनवरी 1 2007, जनवरी 1 2007 टू 31 दिसंबर 2008। तो 2 साल का जो पीरियड है उसमें, ठीक है। सर क्या आप पढ़ाओगे क्या? अरे भाई विकास सर बहुत बड़े, मेरे से ज्यादा अच्छे टीचर्स पढ़ाएंगे, लेट मी अश्योर यू ऑफ दैट। ठीक है, मतलब इस साल के टॉपर्स को जिन टीचर्स ने पढ़ाया है उन वो वाले टीचर्स आप लोगों को पढ़ाएंगे। फैंटास्टिक फैंटास्टिक, यही सुना। और मेरे ख्याल से कुछ बच्चों का सवाल ये भी आ रहा है कि टाइम ड्यूरेशन सेशन का टाइम ड्यूरेशन आई गेस या तो 1 आवर या 1 आवर 15 मिनट, बट आई एम नॉट लाइक हार्ड कमिट नहीं कर रहा हूँ उसके ऊपर, क्योंकि ठीक है। वो प्लानिंग अभी चल रही है कि बिल्कुल। एग्जैक्टली वो बच्चों की स्कूल टाइमिंग वगैरह से मैच करके उसके हिसाब से शेड्यूल करेंगे। इवनिंग में होंगे सेशन। ठीक है, ऑलराइट। 28 दिसंबर 2006, सॉरी 2006 में हो गया तो सॉरी, कोई बात नहीं, ठीक है बच्चों। चलो इसी के साथ हम सेशन खत्म करते हैं। हमने बोला था 15-20 मिनट का, लेकिन आप लोग से बात करते थे हमेशा 40 मिनट हो जाता है, सीरियसली सॉरी, विकास सर को अपनी कर भी जाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको कोई भी डाउट्स है इस सेशन में लेकर, तो भाई जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। अगर वो बच्चा अभी ज्वाइन किया है, दिख रहा है मुझे बहुत बच्चा अभी ज्वाइन किया है, आप पूरे सेशन को देखो, क्योंकि ये जो सेशन आपकी जिंदगी डेफिनेटली बदल सकता है। देखो सेशन को, और अगर आपको लगता है कि कोई बच्चा है या तो कोई है आपका दोस्त जो इसको क्रैक करना चाहेगा आपके साथ, उनको ये वीडियो जरूर शेयर करना। इंस्टाग्राम पे हो, फेसबुक पे हो, जहां पे हो शेयर करना, जरूर शेयर करना, बट डू इट, ठीक है। लेट्स डू दैट, ऑलराइट। तो विकास से मिलते हैं फिर। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, तो आपको बाय बच्चों, थैंक यू सो मच। हमारे चैनल करना होगा। दिस इज विकास साइनिंग ऑफ। अच्छा ऐसा है क्या? दिस इज विकास साइनिंग ऑफ। दिस इज विकास साइनिंग ऑफ पीपल। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अंटिल देन पीस।